Yes, hello my dear students, good morning. Today we are going to learn Markovnikov rule. Yes, Markovnikov's rules. According this, when unsymmetrical unsaturated hydrocarbon treated with halogen acids, then negative part of addendum will go to that of unsaturated carbon which contain least number of hydrogen. And its mechanism is electrophilic addition. Why its mechanism is electrophilic additions? So today we will discuss just about this, and lot of questions including NEET, IIT and board exams we will cover today class. So actually these are four rules: Markovnikov first, Markovnikov second, and another one two just opposite of this, anti-Markovnikov first, anti-Markovnikov second. तो बच्चों मार्कोनिकोव पर कितनी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब हम करने वाले हैं, और कैसे बनेंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर करना है तो आप सबसे पहले नोटबुक और पेन निकालो और मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करो अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो। लेट्स स्टार्ट। यस, सो एज आई हैव टोल्ड यू, when unsaturated unsymmetrical hydrocarbon treated with halogen acids, then negative part of addendum will go to that of unsaturated carbon which contains least number of hydrogen. अब बच्चों एग्जैक्ट इस बात का मीनिंग क्या है मैंने तो बोल करके बता दिया और ऐसे लिखा हुआ कहीं पर आपको मिल गया, लेकिन समझ में तो आपको कुछ नहीं आया। आई एम श्योर कुछ भी नहीं समझ आया है। तो अब इसको समझते हैं, पूरी डिटेल समझते हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो स्टार्ट करें। यस, देखिए, दिस इज प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन treated with HBr or HCl, we can say HBr hydrogen bromide, and the product is this 2-bromopropane is the product. Yes, to make it beautiful we will have to write the name of reactant and products. So its name is propene, and this is 2-bromo, as you know this is 2-bromopropane. Yes, both work am I doing, मुझे लिखना भी और आपको समझाना भी है। 2-bromopropane, तो दोनों काम कर रहे हैं हम, हैं। सी हियर, यस सी। तो मैंने जैसे कहा आपको कि अनसिमेट्रिकल, तो व्हाट डू यू मीन, सबसे पहला वर्ड है हमारा अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड। सो व्हाट डू यू मीन बाई अनसिमेट्रिकल, देखिए डबल बॉन्ड से अनइक्वल, दो पार्ट कीजिए इसके डबल बॉन्ड वाली जगह से, तो ये अनइक्वल बनेगा, इधर दो कार्बन आएंगे इधर एक कार्बन आएगा। सो पहली बात हमारी ये हुई, दिस इज अनसिमेट्रिकल। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नोन एज अनसैचुरेटेड। तो हमारा फर्स्ट वर्ड कंप्लीट हुआ, अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन treated with halogen acid. This is halogen H containing acids. Hydrogen bromide is the halogen acid. This is halogen acid. Now negative part of addendum, what am I saying? Negative part of addendum, this is its negative part, this is its positive part, because electronegativity of Br is very more as compared to hydrogen, so bonded electron will shift towards the bromine and bromine gets negative, hydrogen gets positive. Are you getting my points? Yes. So this negative part of addendum, will go to that of unsaturated carbon. These are two unsaturated carbon, double bond containing carbons are the unsaturated carbon, but this bromine, this negative part of addendum will go to that unsaturated carbon which contains least number of hydrogen. So least number of hydrogen तो इस कार्बन पर है सबसे, ये नेगेटिव पार्ट उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर ऐड होगा
जिस पर हाइड्रोजन सबसे कम हो। इस कार्बन पर कम है सबसे कम हाइड्रोजन, सो नाउ हियर इज द ब्रोमीन एंड रिमेनिंग हाइड्रोजन विल बी हियर। ये दिस इज रट्टालॉजी। यस, ये तो आप रट करके बात कर रहे हैं बच्चों, हिंदी इंग्लिश मैंने मिक्स करके बोल रहा हूं। ये तो आपने रट करके बात की कि सर नेगेटिव पार्ट यहां जुड़ा, यहां अटैच हुआ। नाउ क्वेश्चन इन योर माइंड इज दिस, वाई शुड बी हियर इज नेगेटिव, नॉट हियर, नॉट हियर, यही है ना क्वेश्चन आपके मन में। सो टू एक्सप्लेन दिस we will have to know its mechanism। अगर हमें इसका मैकेनिज्म आता है बच्चों, तो हमारे बहुत सारे नीट आईआईटी इंक्लूडिंग क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यस, पक्का। आपको देखने में छोटी सी रिएक्शन लग रही है, लेकिन बहुत सारी एल्कीन्स की रिएक्शंस को करेगी, बिकॉज इट्स मैकेनिज्म इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। याद रखना, अभी मैं लिख रहा हूं और साबित करूंगा कि इट्स मैकेनिज्म इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब ये कंपाउंड मुझे मैकेनिज्म के थ्रू बना करके बताना है। सो सी दिस, यस, मैकेनिज्म एंड इट्स मैकेनिज्म। ऐसे पूछा जाएगा कि मार्कोनिकोव रिएक्शन, जो मार्कोनिकोव रूल है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म का टाइप है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब व्हाट डू यू मीन बाई, यस लिखो ना पहले तो आप, इलेक्ट्रोफिलिक लिखो, सब लिखो, देखो, हाँ यस राइट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ये मैकेनिज्म का टाइप है इसका। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मीन्स फर्स्ट अटैक विल बी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। No doubt both will attack, electrophile and nucleophile both will attached in the reactant, but name of mechanism is based on first attack। फर्स्ट अटैक किसका हो रहा है? अगर फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल का हो रहा है बच्चों, तो हम उसको कहेंगे माय डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है तो हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नाउ यस, हम देखते हैं यहाँ पर किसका फर्स्ट अटैक होगा और क्यों। एक्चुअली क्या है, अगर आप मतलब केमिस्ट्री को ढंग से समझना चाहते हैं ना आप, तो हर जगह पर क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्यों, मैं तो ऐसे नहीं करूँगा, मैं तो ऐसे करूँगा, ऐसा क्यों। नॉट इन केमिस्ट्री, आप सारे सब्जेक्ट में ऐसा कीजिए, मज़ा आएगा फिर पढ़ने में, है ना। जब हमारे पास लॉजिक्स मिलेंगे ना, तो फिर हमें मज़ा आएगा। देखिए कैसे, दिस इज प्रोपीन, यस मैकेनिज्म कर रहे हैं हम, प्लस अटैकिंग है हमारे पास HBr। नाउ टेस्ट ट्यूब में हमारे पास प्रोपीन है और HBr है। रिएक्शन को कौन स्टार्ट करेगा बच्चों? एक्चुअली रिएक्शन को स्टार्ट वो करता है जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव HBr है, क्योंकि ब्रोमीन जो हेलोजेंस होते हैं ना, FONClBr, फॉन्सलब्री, याद रखना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फ़ोन करके पूछ लेना किसको फ़ोन लगाना है, सेलब्री को। ये ताकतें, ये दीज आर द लीडर ऑफ केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह पर लड़ाई झगड़ा, टेंशन, रिएक्शन, सब कुछ यही कराएंगे। FONClBr, सबसे ज़्यादा ताकतवर F है और फिर है I। जिनका इसमें नाम नहीं है उनकी ताकत इन सबसे कम है, और वो बाकी की सबकी ताकत करीब करीब आपस में बराबर है। गेट इट? फास्ट तो नहीं कर रहे हम? अच्छा, स्लो कर देते हैं। सी नाउ, तो हमारे पास देखो HBr, ब्रोमीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन will shift towards bromine। Question, why bromine is more electronegative? Electronegative means powerful। जो पावरफुल होते हैं ना बच्चों, वो धोखाधड़ी करते हैं जब बॉन्ड ब्रेक होता है, और बिना धोखाधड़ी के केमिस्ट्री की कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। याद रखना, रिएक्शन का मतलब है धोखाधड़ी। बॉन्ड ब्रेक होंगे, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज द रिएक्शन। सो सी दिस, bonded electron will shift towards the bromine, so bromine gets negative and forming H, this forming H gets positive। Now
दोहा हो गया किसके साथ, H प्लस के साथ। किसने किया, ब्रोमीन ने किया। क्यों किया, लालची। जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रीडी होते हैं बच्चों, और वो ये हैं फ्लोफोन्सेल्बरी। ये हमेशा क्या चाहते हैं, दीज एटम्स ऑलवेज वांट्स टू गेट नेगेटिव चार्ज इन सेल्फ, हमेशा किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं ये। तो इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड ब्रेक हो गया। नाउ सी हियर, इन दोनों में से अटैक पहले किसका होगा, तो टेंशन जिसके पास है, देखो बताओ टेंशन किसके पास है, H प्लस के पास है ना। H प्लस प्लस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। वाई, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लव, ये इलेक्ट्रॉन्स को लव करेगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। वाइल ब्रोमीन माइनस नोन एज न्यूक्लियोफाइल। What am I writing here? Nucleophile. Okay. So my dear students, first attack will be of electrophile H plus, क्योंकि टेंशन तो H प्लस के पास है ना, धोखा तो हाइड्रोजन के साथ हुआ है, दोनों इलेक्ट्रॉनों को ब्रोमीन ले गया। Now see, pi bonded electron will shift in this direction. Question, वाई, मैंने कहा था ना कि हर जगह पर माय डियर स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो ही मज़ा आएगा पढ़ने में। यस, आप ज़बरदस्ती मत पढ़िए, इसको इंटरेस्ट से पढ़िए, और इंटरेस्ट के लिए आप खुद से बातें कीजिए। यहाँ रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये भी तो हमारी तरह ही हैं, बिल्कुल। यस, ये आपस में बात करते हैं, इनके आपस में कोड लैंग्वेज होती है। कोड लैंग्वेज मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होते हैं। So see, bonded electron shift in this direction. Question, why in this direction? Because this methyl is giving plus I effect. Plus I effect means electron donating effect. तो मिथाइल क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, इफ यू रिमेंबर्ड। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, याद रखना, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनर्स। अब ये परमानेंटली नहीं दे रहे होते हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे होते हैं, जिस एटम के साथ जुड़े होते हैं ना, थोड़ा सी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू उसकी तरफ शिफ्ट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन अपने आप में ज़्यादा महसूस कर रहा होता है। तो देखो, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों की कार्बन की ताकत बराबर थी, पावर्स क्या थी, सेम थी। मगर क्या हुआ बच्चों, दिस मिथाइल ग्रुप गिविंग प्लस आई इफेक्ट टू दिस कार्बन। तो ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन को क्या कह रहा है, मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो। ये मैं आपकी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, हाँ, मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो। तो ये कार्बन सेटिस्फाइड हुआ। इसको तो कहने वाला नहीं है ना कोई ऐसा कि मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो, तो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन इस तरफ ही जाएंगे, इस तरफ नहीं आएंगे, इधर तो इलेक्ट्रॉन डोनर बैठा हुआ है, पक्का। सो व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन, दिस कार्बन गेट्स नेगेटिव एंड दिस कार्बन गेट्स पॉजिटिव। आपको ये पता चल गया कि भाई यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको रियल ट्रुथ बता रहा हूँ, जिस स्टूडेंट को प्लस माइनस बनाना आ गया, समझ लेना केमिस्ट्री की रिएक्शंस, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस उसे समझ आएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस में प्लस माइनस ही बनेंगे, फ्री रेडिकल वाली रिएक्शंस बहुत कम होंगी। लेकिन प्लस माइनस इन करेक्ट वे आना चाहिए आपको बनाना। तो मैं करेक्ट वे बना करके हर जगह पर आप क्या लगाएंगे, यस, लॉजिक। वाई, इस तरफ क्यों, उस तरफ क्यों नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आप पूछेंगे। यस, सी दिस, आपको इतना समझ आ चुका है अच्छी तरह से। देखो, मैं तो फटाफट से विद इन सेकेंड्स कर सकता था ये सारा कुछ, पर मुझे तो समझाना है, तो इसलिए मैं आराम से आपके साथ वर्क कर रहा हूँ। ओके, सी दिस, इतना भी आराम से नहीं, अभी स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। CH3CH2। नाउ टेंशन किसके पास थी, H प्लस के पास, क्योंकि ब्रोमीन तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लेकर के गया था। तो H प्लस का जो मोशन होगा वो वेरी फास्ट होगा, फास्टेस्ट
लाइटेस्ट, यस कंप्लीट केमिस्ट्री में लाइटेस्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो H प्लस के पास टेंशन है, इसके इलेक्ट्रॉनों को कोई ले गया तो ये ऐड होने जा रहा है, तो ये माइनस पर ऐड होगा। सो हियर अटैच हो गया H, दिस प्लस रिमेन एज सच एंड दिस Br माइनस रिमेन एज सच। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कौन अटैच किया है? इलेक्ट्रोफाइल। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। नाउ सेकंड स्टेप में, मतलब जुड़ने तो दोनों ही हैं, लेकिन बच्चों दोनों के जुड़ने के टाइम का डिफरेंस होता है, वेरी लिटिल डिफरेंस होता है, माइक्रो सेकंड से भी कम का होता है। अब Br माइनस अटैच होगा यहाँ, तो हम इस दोनों रिएक्टेंट को यहाँ लेकर के आ रहे हैं। सी हियर CH3CH प्लस CH2H एंड नाउ Br minus CH3CH2H and this Br minus will be here। तो देखिए हमारा यही तो प्रोडक्ट था, 2 ब्रोमोप्रोपेन। सी दिस स्पेस पर यही तो प्रोडक्ट था, 2 पर ब्रोमीन हाइड्रोजन, 2 पर ब्रोमीन हाइड्रोजन। पक्का बच्चों? देखो न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ा, ऐड हुआ, इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हुआ। फर्स्ट पहले कौन ऐड हुआ? इलेक्ट्रोफाइल। सो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला क्वेश्चन ये होगा मार्कोनिकोव का। यस, मार्कोनिकोव फर्स्ट रूल है ये। एनी डाउट यहाँ? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। देखो अब हमारे, यस। अब जो आपके माइंड में चल रहा है ना, मैंने कहा था नीट IIT के इस पे क्वेश्चंस बताऊंगा, बिल्कुल जरूर बताऊंगा। देखिए सी हियर, अभी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फिर मार्कोनिकोव सेकंड लेकर के आ रहा हूँ। मार्कोनिकोव, चलो एक बार मार्कोनिकोव सेकंड भी बात। मार्कोनिकोव सेकंड रूल। Yes, Markovnikov is the scientist. अब what is this? When unsaturated halogen containing hydrocarbon treated with halogen acids, then negative part of addendum will go to that of unsaturated carbon which contain previously halogen। समझ आया? नेगेटिव पार्ट इस बार वहां ऐड होगा माय डियर स्टूडेंट्स जहां पहले से हेलोजन हो। क्वेश्चन क्यों? आंसर सी। देखो इस बार पहले से हेलोजन है, ये हेलोजन पहले से क्लोरीन, और ये डबल बॉन्ड CH2, या मैं ब्रोमीन भी ला सकता था और मैंने HCl रिएक्ट कराया। इंटरेस्टिंग। मार्कोनिकोव का सेकंड रूल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, MRV सेकंड। अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये तो रट्टा समझते हो ना? हाँ, रट करके, यानी बुक वाला आपने आंसर दिया कि सर ये हैलोजन वहाँ ऐड होगा जहाँ पहले से हैलोजन हो। तो पहले से तो इस कार्बन पर है, अनसैचुरेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं? तो यहाँ पर आपके पास हैलोजन आ गया एंड हियर इज H। गेट इट? नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, एडेंडम का मतलब है जिसको आप ऐड कर रहे हो, उसका नेगेटिव पार्ट उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर ऐड होगा जिस पर प्रीवियसली हैलोजन हो, नेगेटिव पार्ट पहले से जुड़ा हो। इस पर अटैच कर दिया मैंने। यस, क्वेश्चन इन योर माइंड इज सर, यस, हाँ समझ गए हम कि ऐसा क्यों। एक्सप्लेनेशन, मैकेनिज्म,
और फिर बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। मैकेनिज्म वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एंड व्हाट आई हैव टोल्ड यू, मैंने कहा था जिस स्टूडेंट को बच्चों केमिस्ट्री में प्लस माइनस बनाना आ गया, समझ लो उसको रिएक्शंस काफ़ी हद तक आ गए। यही तो कहा, अब इसमें प्लस माइनस बना दो। देखो आप जरा, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सी हियर, क्लोरीन डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस HCl। रिएक्शन कौन स्टार्ट करेगा? हैलोजन। सर यहाँ भी तो हैलोजन है। मैंने कहा था ना कि आप जितने क्वेश्चंस पूछ सकते हो बच्चों, तुम मुझे जितना परेशान करोगे ना, बिलीव मी आई फील वेरी हैप्पी, मुझे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि एक्चुअली क्या है, आप मुझे परेशान कब करेंगे? जब आप मेरे साथ जुड़ गए, यानी तब आपके माइंड में क्वेश्चन चलेंगे। मॉलिक्यूल से खूब बातें करो इनसे कि भाई तू ऐसा क्यों है, तू यहाँ से क्यों शिफ्ट हो रहा है। आंसर सारे निकलेंगे। आपसे नहीं निकल रहे, मैं हूं ना, मुझसे पूछो, सारे मैं बताऊंगा। सी हियर, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स द क्लोरीन, सो व्हाट आर द फॉर्म? Cl माइनस H प्लस। धोखा हाइड्रोजन के साथ, किसने? क्लोरीन ने। टेंशन में कौन? H प्लस। जुड़ने की जल्दी किसको? हाइड्रोजन की। फास्टेस्ट, लाइटेस्ट, स्मॉलेस्ट। अब सबसे ज़रूरी बात है यहाँ प्लस माइनस कैसे बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइंड में दो बातें आ रही हैं प्लस माइनस बनाते समय। एक बात है तो ये आ रही है कि क्लोरीन का क्या है? माइनस आई है, तो हमारे पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। एक बात मन में, हमारे आपके मन में, आपके आ रही है कि सर पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, लेकिन ये जो मैंने एरो लगाया है ये तो 10% के आ सकती है, वो भी गलती से आ सकती है। ज़्यादातर स्टूडेंट के 99% स्टूडेंट के मन में यही आ रहा है कि सर ऐसे शिफ्ट होंगे, लेकिन मैं तो ऐसे करूँगा शिफ्ट। मैंने जो किया है वही करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन क्यों सर? आंसर समझो इस बात का। यस, आंसर समझना। क्लोरीन का माइनस आई है, उसके बावजूद इलेक्ट्रॉन इधर है, क्योंकि बेटा जी माइनस आई के साथ साथ यहाँ प्लस एम भी तो है क्लोरीन का, प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट। याद आया कुछ? सर नहीं आया, तो लो तुम्हारी लैंग्वेज में समझाता हूँ। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन? 7 में से एक बॉन्ड बनाने गया है और एक कार्बन का, और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6। अच्छी तरह समझना। क्लोरीन का न्यूक्लियस कह रहा है कि आजा, यानी माइनस आई, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या दे रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन गिविंग एबिलिटी रख रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी रख रहे होते हैं। दिस एबिलिटी नोन एज प्लस एम, प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट, वाइनिल क्लोराइड रेजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट। क्लोरीन के न्यूक्लियस का तो माइनस आई है, और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का है प्लस एम। अब विक्टर कौन होगा? जीतेगा कौन? मन में ये क्या माइनस आई की? तो याद रखना मेरी बात अच्छी तरह से, जब इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट दोनों एक साथ हों तो मीजोमेरिक इफेक्ट जीतेगा ऑलवेज। विनर कौन होगा? मीजोमेरिक इफेक्ट होगा। सो हियर इज विनर इज मीजोमेरिक इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मीजोमेरिक इफेक्ट के प्लस एम और माइनस एम, प्लस एम में क्या है? इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, माइनस एम में इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गिवन टेंडेंसी है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अपन कह सकते हैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, छोटी क्लास के लिए रिपल्शन है यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का, और लोन पेयर का रिपल्शन है छोटी क्लास के लिए। लेकिन अगर आप साइंटिफिक वर्ड यूज करना चाहते हैं तो प्लस एम विल बी डोमिनेंट माइनस आई के कंपेरिजन में।
जब दोनों होंगे तो एम डोमिनेंट होगा, एम आई, एम डोमिनेंट होगा, आई नहीं होगा। मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कह सकते थे आप सिंपलेस्ट लैंग्वेज में। देन दिस कार्बन विल गेट नेगेटिव एंड दिस कार्बन विल गेट पॉजिटिव। अब देखो, अभी दूसरा तरीके से भी एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, लेकिन आप पहले एक बार समझें। इधर टेंशन किसके पास थी, बताओ किसके पास थी बच्चों, H प्लस के पास, और माइनस कहाँ है, यहाँ। दिस इलेक्ट्रोफाइल, ई से लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल, विल अटैच हियर। हमारा फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन अटैच हो गया, हो गया। आप ऊपर नीचे कैसे भी बता सकते हैं कि यहाँ ट्रांस एडिशन और सिस एडिशन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा मैं आपको। एंड दिस कार्बन गेट्स पॉजिटिव एंड Cl minus remain as such। अब हमारे पास Cl माइनस की बारी है, आप यहीं से बना के दिखा सकते हो या इनको सेकंड स्टेप में लिख दो। सी, मैं सेकंड स्टेप में लिख करके बता दे रहा हूं। इसको कार्बोनियम आयन को लाऊंगा, जब कार्बन पर प्लस होता है ना बच्चों, तो अपन उसको क्या कहते हैं, कार्बोनियम आयन, और ये 2 डिग्री का कार्बोनियम आयन बना है। नाउ हमारे पास Cl माइनस आया, सी दिस CH3Cl CH2H एंड हियर इज द क्लोरीन। तो देखो हमने क्या किया था, जब हमने हेडिंग दी तो वहाँ दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर तो थे, ऊपर एक ऊपर, देखो ना ये जस्ट अबव, दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर है। यही तो कंपाउंड था, यही बन गया हमारे पास कंपाउंड। कलर्स के साथ लो जी, H Cl minus, here is H Cl minus, H हाइड्रोजन एंड Cl minus आ गया हमारे पास, पक्का। सी दिस, when both halogens present on same carbon known as jam dihalide, तो this is jam dihalide, jam dihalide, jam dihalide, jam word coming from Gemini, Gemini means twins, twins means जुड़वा, both halogens are twins, दोनों हेलोजन क्या हैं, ट्विंस हैं। यस, जैम विजनल और पॉलीमेथिलीन वो सब आगे की बात है, लेकिन अभी तो आपको सिंपलेस्ट थिंग समझनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप अनदर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस आप ऐसे कह सकते हैं, देखो यहाँ 2 डिग्री का कार्बोनियम आयन बना, अगर मैं इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता, बाई द वे तुम्हारी बात मानता, तो फिर प्लस यहाँ आता, तो फिर वो 1 डिग्री का कार्बोनियम आयन होता। और आप अच्छी तरह जानते हैं 2 डिग्री का कार्बोनियम आयन इज मोर, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1 डिग्री। तो इसलिए शिफ्टिंग यही वाली पॉसिबल है। सेम रिजल्ट विल बी हियर, अगर आप इस तरफ बनाते, नेगेटिव गलती से बनाते, गलती से बोल रहा हूँ, जाको बनना नहीं है, पहली बात तो इस तरफ ही बनना है क्योंकि प्लस आई इफेक्ट है। अब देखो यार 2 डिग्री का कार्बोनियम आयन बना है ना, अगर आप इस तरफ शिफ्ट करते तो प्लस यहाँ आता और एच यहाँ आ जाता, तो ये 1 डिग्री का कार्बोनियम आयन होता, और 1 डिग्री का कार्बोनियम आयन लेस स्टेबल होता है। सर आप ये 1 डिग्री 2 डिग्री क्या बोल रहे हैं, याद रखो यार, तुम ऐसे मत भूलो। चलो मैं ध्यान दिलाता हूँ, जिस कार्बन पर प्लस है ना, वो कार्बन 2 कार्बन से टच है तो 2 डिग्री का कार्बन, तो 2 डिग्री का कार्बोनियम आयन। और जिस पर प्लस है वो अगर 1 कार्बन से टच है तो 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। ये कार्बन अभी 2 से टच है था 2 डिग्री। तो ये डिग्री कार्बोनियम आयन के बेस पर भी एक्सप्लेनेशन रेडी है। दिस कार्बन, सी दिस, जिस कार्बन पर प्लस है ये कार्बन कितने कार्बन से टच है, कार्बन तो 2 ही हुए ना, दिस एंड दिस, दिस इज हेलोजन नॉट कार्बन, तो दिस इज 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। और अगर हम शिफ्टिंग रिवर्स करते तो प्लस यहाँ आता और 1 डिग्री होता। आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। यस बच्चों, अब और अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस देखो कैसे बन रहे थे। मैंने कहा था ना कि आपको क्वेश्चंस भी बताने हैं मैंने। देखो क्वेश्चन सुनो, मार्कोनिकोव पर पहला क्वेश्चन, which
हाइड्रोकार्बन लिख दे रहे हैं, विच हाइड्रोकार्बन गिव MRV, विच हाइड्रोकार्बन गिव MRV। और हमारे पास ऑब्जेक्ट जो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, दीज आर द 4 ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सेकेंड CH2 डबल बॉन्ड CH2, थर्ड CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, फोर्थ CH3C डबल CH डबल बॉन्ड CH3, फिफ्थ CH3CH डबल बॉन्ड CH2, फोर्थ सिक्स्थ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और वी कैन से C2H5। तो आंसर है बच्चों इस समय 2 आंसर है। विच हाइड्रोकार्बन गिव मार्कोनिकोव, 5th देगा और 6th देगा। ये नहीं देगा, नॉट गिव, नॉट गिव, नॉट गिव, नॉट गिव, 2 आंसर्स। बिकॉज हमारी पहली शर्त अनसैचुरेटेड, ऑल आर अनसैचुरेटेड। सेकेंड शर्त अनसिमेट्रिकल, ये चारों सिमेट्रिकल हैं, ये अनसिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है, तो ये दोनों ही देंगे। समझ आया? आंसर 5 एंड 6। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच हाइड्रोकार्बन विल गिव MRV। वापस से MRV लिख रहा हूं, अब उसने फर्स्ट सेकंड वर्ड नहीं लिया, बस आपको ये फाइंड आउट करना है। अब कोई सा भी हो सकता है, लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, सेकेंड CH3C H double bond CH3, and third is, yes, third is vinyl chloride, and fourth acetylene. Now answer is only one, third, vinyl chloride. कुछ ने MRV बोला तो MRV देखो, पहले तो फर्स्ट की ट्राई करो। MRV फर्स्ट नहीं एप्लीकेबल होगा, लेकिन MRV सेकंड की बात करो तो हेलोजन, देखो नो डाउट ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि सेकंड रूल में सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल वर्ड था ही नहीं। सेकंड रूल में तो ये वर्ड था हेलोजन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो हेलोजन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना। अब नया हेलोजन जोड़ेंगे तो वो यहाँ जुड़ेगा। इट मीन्स मार्कोनिकॉफ सेकंड एक्सप्लेनेशन हो गया है। देखो ऐसे एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, आपने इसमें HCl ऐड किया, तो MRV सेकंड रूल लग रहा है। उसने तो मार्कोनिकॉफ कहा है ना, तो वो कोई सा भी हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड। पर्टिकुलर अगर वो फर्स्ट या सेकंड कह दे तो फिर ऑब्जेक्टिव डिफरेंट तरीके से होंगे, फिर हमें डिफरेंट आंसर्स देना होगा। अब आराम से आपके पास ये रूल लग गया, CH2 CHCl, नया हेलोजन यहाँ आ गया और हाइड्रोजन यहाँ आ गया। सी हियर, तो हमें मार्कोनिकॉफ सेकंड रूल लगा दिए ना। यस माय डियर स्टूडेंट्स, 2 रूल आपने मार्कोनिकॉफ के पढ़े, मार्कोनिकॉफ फर्स्ट एंड मार्कोनिकॉफ सेकंड। ऐसे ही 2 रूल एंटी मार्कोनिकॉफ के। एंटी मार्कोनिकॉफ ने नहीं दिया, वो खराश ने दिया है, तो अपन उसको बोलेंगे खराश इफेक्ट। लेकिन उसने जो बातें कही है ना माय डियर स्टूडेंट्स, वो मार्कोनिकॉफ के ऑपोजिट कही हैं, तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो वो
नेक्स्ट क्लास की बात है, पहले मार्कोनिकोव पर क्या क्या प्रोबेबिलिटी है वो आप डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो सी व्हाट वी हैव डन, क्या क्या हम कर लिए। यस, सी दिस, मार्कोनिकोव को तो अच्छी तरह एक बार देखें, फिर एंटी मार्कोनिकोव बताने जा रहा हूं। यस, रेडी, देखो बिल्कुल शुद्ध हिंदी के साथ बता रहा हूं। जब देख, इंग्लिश में तो मैंने आपको बोल करके बता दिया, अब मैं हिंदी के साथ बोल करके दिखा रहा हूं अच्छी तरह से आपके, क्योंकि हिंदी आपकी मदर लैंग्वेज है। अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हैलोजन वहां ऐड होगा जिस पर हाइड्रोजन कम हो, उस अनसैचुरेटेड पर ऐड होगा, ऐड होगी रिमेनिंग पर एच। क्यों होगा वो आपके पास लॉजिक है। लॉजिक है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यानी पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा। क्यों जी, पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का क्यों होगा? टेंशन इलेक्ट्रोफाइल के साथ। सेकंड अटैक न्यूक्लियोफाइल, और फर्स्ट अटैक के बेस पर हमारी डिफाइन होती है। एक रास्ता तो ये था, या आप कहेंगे दिस इज 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, which is more stable, as compared to, क्योंकि जब मोर वर्ड होता है तो दूसरा कंपेयर करना होता है, 1 डिग्री कार्बन। पक्का? मार्कोनिकोव सेकंड, अगर हैलोजन पहले से जुड़ा हुआ है, लेकिन कहां पर जुड़ा हुआ है याद रखना, अनसैचुरेटेड पर, अनसैचुरेटेड कार्बन पर पहले से ही जुड़ा हुआ ऐड है हैलोजन, तो फिर जो न्यू हैलोजन आएगा ना माय डियर, वो वहां आएगा जहां पहले से अटैच्ड है। यहां क्लोरीन पहले से अटैच्ड है ना, तो नेक्स्ट क्लोरीन विल बी हाइड्रोजन से। क्यों? यही तो क्वेश्चन चल रहा है ना। यस, सी दिस आंसर। मैंने कहा था कि क्लोरीन के न्यूक्लियस का क्या है, -I, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या है, +M। जीतेगा कौन? -I और +M में लड़ाई होगी तो जब मेजोमेरिक जीतता है, याद रखना, मेजोमेरिक इफेक्ट जीतेगा, विनर मेजोमेरिक। तो मेजोमेरिक में ये इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, शिफ्टिंग इसमें माइनस बनते ही, जो माइनस प्लस बनाना जानता है वो रिएक्शंस जानता है, सीधी सी बात। लेकिन माइनस प्लस सही आने चाहिए विद लॉजिक। और ये मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन किए हैं, अभी और बहुत अच्छी क्वालिटी के बेंजीन रिंग लगा दूंगा मैं इसमें, या ROR की प्रेजेंस कर दूंगा, तब क्या आंसर्स होंगे, तब सारे आंसर्स रिवर्स हो जाएंगे जो अभी हैं। वो एंटी मार्कोनिकोव और आपके सामने आ जाएगा ना, तब वो बातें आपको समझ आएंगी। तो आज की क्लास में हमने मार्कोनिकोव कंप्लीट किया है। मार्कोनिकोव स्पेलिंग मार्कोनिकोव का है, प्रोनाउंसिएशन में मार्कोनिकोव बोलते हैं। तो आई थिंक मार्कोनिकोव रूल से रिलेटेड अब इसका क्या एप्लीकेशन और होगा। मैंने कहा कि एल्कीन और एल्काइन दोनों ही दे रहे हैं। यस, एल्काइन के साथ कराओगे तो मार्कोनिकोव, पहले तो मार्कोनिकोव फर्स्ट लग जाएगा जैसे प्रोपाइन के साथ कराओगे, फिर प्रोपाइन से जो बनेगा 2-क्लोरोप्रोपीन, उसमें एक बार और कराओगे, मार्कोनिकोव सेकंड लग जाएगा। एक और ज़रूरी बात, ये हैलोजन एसिड्स में से कौन आसानी से देगा? फ्लोरीन की तो सबसे ज़्यादा ताकत थी, लेकिन फिर भी मैंने HF से तो नहीं समझाया आपको ये। क्यों जी? क्योंकि HF की बॉन्ड एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो HF आसानी से टूटेगा नहीं, तो फ्लोरीन बहुत मजबूती से इसको पकड़े हुए है, तो HF मैंने नहीं लिया। तो सर बॉन्ड एनर्जी सबसे कम HI की थी, वो आप क्यों नहीं लेके आए? ला सकते हो, देगा जरूर, लेकिन फिर भी मैं नहीं लाया, क्योंकि आयोडीन का साइज़ क्या है, लार्जर है। लार्जर साइज की चीज़ें जुड़ने में क्या करती हैं, ऐड होने में क्या है, उतनी स्टेबिलिटी नहीं देती।
मतलब मैं डेफिनेटली रिएक्टिविटी की बात करूं तो HI ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि बॉन्ड एनर्जी उसकी कम है, लेकिन आयोडीन लार्जर इन साइज होने की वजह से जुड़ने में क्या है उसको परेशानी। तो मैंने किसके साथ समझाए, HCl और HBr के साथ, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ जब मैं समझाऊंगा तो वहाँ ना तो HF होगा, ना ही HI होगा, ना ही HCl होगा, ओनली HBr होगा। सारी गड़बड़ कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल कंपोनेंट होगा परऑक्साइड। अब वो परऑक्साइड ROR क्या होगा बच्चों, कैसे एक्ट करेगा, देखेंगे आगे वाली क्लास में। बिल्कुल चिंता ना करें आप पता है क्या चिंता करें, जो मैंने बताया है वो एक एक बात सोचें, हर जगह पर क्वेश्चन लगाएं, ऐसा क्यों ऐसा क्यों, खुद भी आंसर मिलेंगे, नहीं मिले तो मुझे पूछो, लिखो, पूछो मुझे। ओके, तो आज बस इतना ही। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।